So last week we discussed about health insurance important terminology, and this week's our topic is SIP. Basics of SIP. SIP is very close to each and everyone's heart. बराच सारा मार्केटिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट कंटिन्यूअस होत असतं. SIP करा, contribute this much of amount and you will reach to a certain purpose. What we wanted is to let you know exactly how does SIP work, basic rules, the format and everything. So let's start with the presentation. I just got an update that I've got a revised copy. Let me first download it. Give me a second, please. Okay. करते पण असू दे, डोंट वरी, मला माहिती. Yeah. So let's start with the presentation. Just if you can somebody confirm, am I audible? Is it clear? Voice is clear? Are you able to view my presentation? Yes. Thank you. Thank you so much. So welcome you all. As I said, Ideal Pathshala is our new venture wherein every Saturday in the morning at 10 o'clock, we'll talk about or we would like to share some knowledge or concepts related to investment. It be personal finance or insurance or will writing or as small topic as top up SIP, basics of SIP. So little bit about us. We are in the 24th year of journey of Ideal Investments. Today we are managing, यहाँ पे लिखा है 275 crores. Exactly today, to be specific, it is 286 crores that we manage. We are serving 2,500 more clients. AUM से ज़्यादा तो ये हमारी asset है. You all know presentation नहीं दिसत है. Is my presentation visible? Presentation visible आहे? नाही आहे. Just a minute. Let me again share my screen. Is it visible now? I'm not able to make it full screen. Yes. Is it visible now? Kevri? Yes, thank you. So, you know my dad, he started with Ideal Investments 24 years back. I'm working with him since 7 years now. I've completed my certification in personal financial planning. Since we are conducting a session online, few do's and don'ts I would like to highlight. It's a request. Please rename yourself with your full name. अगर आपने आपका मोबाइल या फिर अगर कुछ पासवर्ड रखा जो मीटिंग कोड है, तो हमें बाद में दिक्कत आती है आपके साथ कुछ मटेरियल शेयर करने में. वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग द अटेंडेंस, सो उसके लिए हमें प्लीज कोऑपरेट कीजिए. प्लीज रीनेम योरसेल्फ. कीप योर वीडियोज ऑन एंड कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड. यस, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. लास्ट सेशन में हम लोग ने क्वेश्चंस नहीं लिए थे. उसका रीजन ये था, क्वेश्चंस लिया और बाद में अलग से क्लैरिफिकेशन दिया फॉर द ओनली रीजन क्योंकि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात की थी. इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन बिकॉज हर एक की पॉलिसी अलग होगी, हर एक की कंपनी अलग होगी. बट दिस टाइम सिंस इट्स SIP, last 15 minutes roughly I would like to dedicate only for question and answers. So feel free to ask your questions, but at the end, because
हम एक इंटरेक्टिव सेशन की तरह, देयर इज समबडी एल्स आल्सो ज्वाइनिंग मी हियर, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. सो हम क्वेश्चन आंसर्स की तरह ऑलरेडी यही फॉर्मेट में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो शायद आपके क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर करने वाले हैं. अगर नहीं, क्या कौन सा क्वेश्चन हमसे मिस हो रहा है, डू लेट अस नो एट द एंड. बाकी आप हैंडी कुछ पेन, नोटबुक पेन रख सकते हो. बी अटेंटिव, note down important points and feel free to ask questions at the end. Again, same slide as last session, few important contact points of ideal investments. Coming back to the topic, basics of SIP. As you all know, the full form of SIP, systematic investment plan. एक concept पहले जान लेते हैं. SIP means certain amount is getting debited from your account on the fixed date. Fixed amount is getting debited on the fixed date and we can even fix the tenure for the same. ठीक है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें और डिटेल में जाने के लिए टुडे आई इनवाइट मिस अक्षता. Let's welcome her. She is a new joinee in Ideal Investments. And since the day she is joined, she is curious to know about SIP. वो clients को handle करती है, तो बहुत सारे questions handle कर रही है. So when I designed this topic, she already had listed few questions. So Akshata, welcome you in the session, and I request you to introduce yourself, and let's have it in this format कि आप क्वेश्चन पूछो एंड आई ट्राई टू आंसर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अक्षता के क्वेश्चंस जनरली कॉमन क्लाइंट के क्वेश्चंस सेम होते हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे. लेट्स वेलकम अक्षता. Thank you, Ashwara ma'am. Hi, good morning all. This is Akshita. This topic is very close to my heart. So whenever I deal with investors, they often have some questions about the SIPs. Since I'm also new in this field, so I have two similar questions. So I have written it down for the today's session. So Ashwara ma'am, shall we start for the questioning? Yes, the idea was कि सिर्फ मैं बात करूं, एक मोनोटोनस लगता है सेशन. इफ इट इज इन द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, I think everybody will be able to relate it more better. Please, Akshata, yes, you can start. So my first question is, what is the difference between SIP and lump sum investment? And Aishwarya ma'am, which option is better for me and how identify for the same? Perfect. Very basic, very good questions. In fact, yesterday when we had asked you all to fill up the form, उसमें बहुत जन ने नीचे लिखा था कि हमें जानना है कि पहले तो इसका डिफरेंस क्या है. And Akshata also came out first question with this, so we designed a presentation accordingly. First, understand those who are working and those who are in their younger age with certain amount getting credited as a salary in their account. जैसे कि अक्षता है, जिसने नया नया जॉब शुरू किया है, there is a certain amount that she is getting as a salary, and then she can decide to save a part of it and invest in SIP. But those who have a corpus already lying in their bank, जैसे बैंक में LIC का पैसा आया लमसम 5-10 लाख, वो पड़ा है, या फिर जगह बेची, टैक्स पे किया, कुछ लमसम बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में है, या फिर किसी किसी को साल में एक बार ऑफिस से बोनस डिक्लेयर होता है, वो भी एक चंक ऑफ मनी है जो हम लमसम की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ बड़ी अमाउंट ऑलरेडी है तो आप लमसम के लिए ऑप्ट कीजिए, पर अगर वैसी अमाउंट आपके पास नहीं है और थोड़े पैसे आप हर महीना, चाहे वो 5,000 हो, 500 हो या 10, 15, 50,000 हो, अलग से निकाल सकते हो बाहर, तो यस, you should opt for SIP. Now, which option is better? Both are good. Both are good. In fact, we always suggest client to enter with some lump sum and some SIP if possible. Akshata, आता तू मला सांग की what do you think which is the right option for you? मी सॅलरीड आहे, सो तर माझ्यासाठी मला असं वाटतं की राईट वाला असेल की SIP मंथली मी स्टार्ट करेन. Perfect.
हा. when you had joined, मला इंटरव्ह्यू मध्ये तू सांगितलं होतंस that your dad has just retired. Okay. Yes. So if we talk about in his case, what do you think is the right option for him? Lump sum. Very good, because retirement paranta, It, see, by the time you retire, you have already accumulated some amount because you have been investing. He might have been investing for certain years. Also, there could be a corpus that you get at the time of retirement. So maybe lump sum for him and SIP for you. Perfect. I yes. hope it is clear. Uh, Shall I move on with the next question? Now I'm salaried person. So what is the minimum amount to require to start SIP? See, when we talk about SIP, it could be, see, generally we recommend 1,000 rupees to begin with, but there is an option. कल ही मुझे एक शाम को मिला है when we were preparing this PPT. छोटी SIP, this is the new concept. 250 से लेकर भी start होती है, 500 and 1,000. See, not all the schemes will allow lesser amount. 1,000 is accepted everywhere, but there are certain schemes which will allow you to invest even 500 and now even 250 rupees. 100 से भी start होती है कुछ कुछ SIP जो कि daily करना चाहते हैं. That's up to you. But otherwise it is 1,000 is what we generally expect, क्योंकि वो कॉर्पस भी तो दिखना चाहिए ना कुछ साल के बाद हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है. सो इफ पॉसिबल 1,000. Am I late to invest? Like, what is the ideal age of start investment? Very good. Akshata, you are not late at all. What we recommend generally, what is the right age? My answer will be when you get your first salary in hand, that is the time you should think about and you should start with your investment. भले वो छोटी amount का ना हो चलेगा, but you should always start and you should always think about taking some part of it aside and not only keep it in the bank as a savings, but invest it in order to make it grow. So first salary, तब से आपको आइडियली स्टार्ट करना चाहिए. बट एज यू सेड मैं लेट हूँ क्या? बिल्कुल लेट नहीं हूँ. जब आपको नॉलेज आता है और जब आपको लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट सही है मेरे लिए, आप तब स्टार्ट कर सकते हो. देयर इज नथिंग लाइक, आई मीन, यस, डीले रुपी एवरेजिंग कॉस्ट करके कंसेप्ट है, वो अलग थ्योरी है, बट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट व्हेन यू रियली वांट टू, भले वो किसी भी अमाउंट की. यस, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन? Next, what is the right SIP date for me? म्हणजे कोई कोई क्लाइंट बोलता है कि 15 रखना है. सो मतलब वो बोलते हैं कि मार्केट का एवरेज आउट रहता है तो 15 रखना है. मतलब वैसे तुमने सुना होगा अ क्लाइंट टॉकिंग अबाउट मी 15 Yes. मतलब महिन्याचा एक ॲव्हरेज पॉइंट असतो. तर व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स. Akshita, we have did some study. In fact, this data is published by White Oak AMC. यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली SIP के डेट से राइट फ्रॉम 1st to 20th, और हर डेट पर अगर किसी ने 10 years तक इन्वेस्ट किया है सर्टन अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, तो उसे क्या रिटर्न्स मिले एट द एंड ऑफ 10th ईयर, वो लास्ट 27 ईयर्स का डेटा रिकलेक्ट किया गया और ये रिटर्न्स हम देख सकते हैं. इट इज एग्जैक्टली 15%, ना 14 है ना 16 है. सो कुछ पॉइंट्स से फर्क आ रहा है. तो अक्षिता, व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर टू एवरीबॉडी इज when you have a longer horizon in mind, don't think about date, it hardly matters. क्योंकि वॉर कब होगा, मार्केट कब गिरेगा, फिस्कल पॉलिसी कब चेंज होगी, ये कौन से डेट पर होगा, ये नहीं पता होता है हमें, और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, दिस वी कैनॉट प्रेडिक्ट. सो एक डेट अपने माइंड में फिक्स करो. इनफैक्ट व्हाट आई थिंक इज, your question was right, Akshita. Instead of keeping 15th in the mind, the date when you are getting your salary, you keep any SIP date after that.
तो अगर आपको 5 तारीख को सैलरी मिल रही है, 10 शुड बी योर 10th शुड बी योर SIP डेट। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी एंड ऑफ द मंथ ही होती है 27, देन 30th कैन बी और 1st कैन बी योर सैलरी डेट और SIP डेट। सो SIP डेट को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कीजिए, ना कि मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes. My next question is, if my SIP जर चालू रहेगी मेरी SIP, तो मुझे अगर Yes. वही एग्जिस्टिंग स्कीम में मुझे अमाउंट फिर से मतलब लाइक कुछ बढ़ाना है, तो मैं कर Okay. सकती हूँ वही एग्जिस्टिंग स्कीम में, क्या मुझे दूसरी स्कीम लेनी पड़ेगी? ओके, क्या व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, अगर आपकी 5,000 की SIP चालू है और आपको और 5 की SIP बढ़ानी है, ठीक है, सो देर आर 2 ways we can do. If you have good schemes already going on, then we will add up in the same schemes. Or if you are missing out on any particular asset class, जैसे कि किसी के पास बिल्कुल भी फोकस फंड है ही नहीं और हमें लगता है को for that particular person that fund is going to be very helpful, important, वो wealth creation में उनकी help करेगा, then we will always recommend कि आप नई SIP उसमें start कीजिए. So basically the idea is you can anytime change your SIP amount, you can increase it or you can decrease it. ओके, अगर मार्केट फॉल होता है Okay, sorry. तो अगर मार्केट फॉल होता है तो मुझे मेरी SIP बंद करनी चाहिए कि वो चालू ही रखनी चाहिए, कि जो भी मेरे अकाउंट मतलब लाइक स्कीम में जो भी मेरा मनी है वो रिडीम करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वो भी एक कंफ्यूजन आता Okay. है। Yes, Akshata, you can mute yourself till the time I answer. Then you can unmute. Okay. So Akshata's question was कि जब मार्केट फॉल होता है तब हमें क्या करना चाहिए? Actually, there is a beautiful theory. I'm just pausing the screen share. Allow me for a moment. Let me share one video here with you all. जब हमारी SIP, जब मार्केट फॉल होता है, and if you can keep your SIP on, it is very, very important. In fact, it will give you a lot of number of units accumulation is more. Allow me a moment, please. Let me share a video with you all. Let me play a video. I'm trying to play a video. Good morning, Aishwarya. Yes. Aishwarya, I have a question. So sorry if I missed. I joined late. Sorry about that. I No want to know problem. that in case, if in a month we are unable to deposit our SIP, suppose if I start the 5,000 rupees SIP and say, for example, in the Okay. next month I'm not able to deposit, then will there be any penalty or anything happens like if we miss? Yeah, we have that question in mind. I'm sorry, I'm not able to play the video. भावना, मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूंगी. We have it in our format. Oh, आपका thank क्वेश्चन you. आंसर होगा आगे. अच्छा, हम लोग डिस्कस कर. Just a minute. तुला दिसतोय माझा व्हिडिओ? Okay. Yes. Let's. Thinking of stopping your SIPs because the market has hit a rough patch? Well, let me tell you why that's not best. Picture this. You are the well supporter of your favorite spouse.
Sales. I got a feedback as the voice was not audible. If somebody can guide me, if you were able to hear it, or later I'll ask you to share the video with everyone. Voice was cracking, ma'am. It was not very clear. Ma'am, एक काम करते. हाँ. I'll ask Katie to share. There are 2 videos. I'll ask her to share later. We'll continue with our presentation. Yes, please. So, what I was explaining was about the market fall. Akshata's question was about market fall. When market falls, the NAV goes down. So it's ideal. In fact, अगर आपने SIP स्टार्ट की और मार्केट फॉल हो गया तो आप लकी हो, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे. सी, जब NAV कम होती है आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, पर बिकॉज NAV हैज gone down, there are more number of units that you will tend to accumulate. At the end of the tenure, जितने यूनिट्स आपके ज़्यादा accumulate होते हैं उतनी आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी. सो मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को SIP स्टार्ट कीजिए. जब भी मार्केट गिरता है और आपको SIP निगेटिव दिख रही है, वो बहुत मतलब फॉर योर माइंड इट इज़ वेरी टफ, but actually are very lucky because number of units which are getting gathered are far more than the units which get otherwise get gathered when the market is high. So पैसा तभी बनता है जब मार्केट नीचे गिरता है. This is the fact. Okay, अक्षता, पुढचा क्वेश्चन. What if my SIP missed? अगर मेरी SIP मिस हो जाती है किसी कारण, लाइक इनसफिशिएंट बैलेंस, तब मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा कि मतलब लाइक क्या होगा मतलब? Yes, I think Bhavna's question was the same one. Bhavna, I'll answer this question now. See, अगर जैसे आपने पूछा या फिर अक्षता का भी वही क्वेश्चन था कि जैसे आपने डिसाइड किया कि चलो मैं 20,000 की SIP तो कर सकती हूँ, पर वो चालू है 6 महीने तक, सब सही से चल रहा है और सडनली कुछ चीज़ों की वजह से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, या फिर वो महीने में आपने किसी अलग अकाउंट में से SIP स्टार्ट किया और उसमें पैसा ही डालना भूल गए. अगर एक बार आपकी SIP मिस होती है, अक्षता, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, सॉरी, देयर इज सम साउंड दैट साइड. अगर आपकी SIP एक ही महीने में मिस होती है तो आपको बैंक चार्जेस लगाएगी, जो हर बैंक के साथ अलग अलग होती है. इट कुड बी राइट फ्रॉम 75 रुपीज टू 500 रुपीज ईच SIP. सो आप SIP डिसाइड करते समय विल कम ऑन टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि हमें कितनी अमाउंट की SIP करनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगी. पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिए, वो डेट और उसके पहले 1-2 दिन से ही आपको वो बैलेंस हमेशा मेंटेन करना है. एक SIP मिस हो गई, कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम मिस हो गई तो भी वो SIP चालू रहेगी. पर अगर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स अगर आप वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हो, तभी वो जाकर बंद होती है. एक महीना मिस हो गई, वो नेक्स्ट महीने से ऑटोमेटिकली डिसाइडेड डेट पे सेम अमाउंट सेम स्कीम में डेबिट होगी. पर जिस दिन आपने 3 महीने का वो जो पीरियड है, 3 महीने आपने वो मिस किया, तो चौथे महीने में वो स्टॉप होगी. उसकी एक छोटी प्रोसीजर रहती है, हम ऑनलाइन भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसे एक फॉर्म पे आपकी साइन लेकर एक चेक लगता है फिर हमें, और उसके बाद हम वो स्टार्ट कर सकते हैं. So there is always a way out, but make sure कि आप वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हो ताकि आप वो मिस आउट ना करें. Yes, अक्षता. Yes, thank you, Bhavna. Can I put my additional money in bit, like SIP अगर मेरी चालू है
और मुझे कुछ सर्टन अमाउंट मेरे पास है, इट्स अ बिग अमाउंट, एक्स्ट्रा तो है, मैं एसआईपी एक्स्ट्रा में डाल सकती हूँ कि कुछ अदर स्कीम जो आप मतलब इसमें डाल सकते हैं क्या, सजेस्ट करोगे? अगर मेरे पास एक अच्छा, सर्टन बिग अमाउंट है तो? करेक्ट, अंडरस्टूड। एक आपकी एसआईपी अमाउंट चालू है और उसके अलावा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच गई है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अक्षता की 10,000 की एसआईपी चालू है और अक्षता हैज सम 50-60,000 अमाउंट एक्स्ट्रा. हेच विचारतीयस ना तू क्वेश्चन? Okay, so in that case what we can do is we can invest that amount in the SIP schemes which are already running. If you have given you 2-3 schemes for 10,000 SIP and if you have some 60,000, हम चेक करते हैं कि करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अभी के स्कीम्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी स्कीम डाउन होगी हम पैसा उसमें ऐड करते हैं या फिर हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन इज, सेकेंड सिनारियो, पहला सिनारियो क्या था, अक्षता की 10,000 की एसआईपी चालू है और उसके पास 60,000 एक्स्ट्रा है, तो हम लोग ऐड करेंगे 3-4 स्कीम जो भी मैंने उसे दिए हैं। सेकेंड सिनारियो देखते हैं, अक्षता की 10,000 की एसआईपी चालू है और उसके पास 5 लाख है। अभी 5 लाख कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट है, अक्षता इज बिकमिंग हैप्पी टू हियर द फिगर। सो 5 lakhs इज द बिगर अमाउंट, देन आई विल आस्क हर टू गो फॉर लमसम। ठीक है, आप समझ रहे हो किस तरह से उसको प्लान या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। छोटी अमाउंट आप एसआईपी में हमेशा कभी भी डाल सकते हो, इसे हम लोग एडिशनल परचेस बोलते हैं, यू कैन डू दैट। ठीक है अक्षता, आई होप आई हैव आंसर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मुझे कुछ इमरजेंसी है सर्टन, तो मैं पॉज कर सकती हूँ क्या? कि वो अगर मैं पॉज मतलब लाइक मुझे अमाउंट की कोई ज़रूरत है इमरजेंसी के लिए, तो मेरी एसआईपी लाइक मैं ब्रेक कर सकती हूँ क्या कुछ? नहीं तो क्या मेरी एसआईपी स्टॉप होगी अगर मैं ब्रेक करूंगी तो? ठीक है, तो आई थिंक देर आर 2 questions in this. One is क्या मैं एसआईपी स्टॉप कर सकती हूँ क्या? यस। एंड मैं क्या एसआईपी ब्रेक कर सकती हूँ? ब्रेक इन द सेंस, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आस्क मी इफ आई कैन विड्रॉ मनी। आई विल आंसर बोथ ऑफ योर क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन था आपका कि मैं एसआईपी स्टॉप कर सकती हूँ क्या? यस। आपने कुछ अमाउंट डिसाइड की, आपने उसमें एसआईपी 10,000 की स्टार्ट की है, 1 साल हो गया, सब अच्छे से चल रहा था, आपको लग रहा है कि फैमिली में कुछ आगे दिख रहा है, एक्सपेंसेस आने वाले हैं, इन दैट केस यू शुड लेट अस नो। यहाँ पे 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ 3 महीने मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, प्रॉब्लम मतलब कुछ रिनोवेशन के लिए एक्सपेंसेस आने वाले हैं, मेरे घर में किसी के लिए मुझे फिक्स्ड अमाउंट पे करनी है, जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर मैरिज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती है, जिससे कि शॉर्ट पीरियड है 1-2-3 मंथ्स, तो एसआईपी स्टॉप मत करना। आप हमेशा एसआईपी पॉज ऑप्शन को चूज करो, ताकि आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली, हम अगर 3 महीने के लिए पॉज करते हैं तो चौथे महीने से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। देखो, इस एसआईपी हम क्यों करते हैं, उसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है, और वो डिसिप्लिन तभी मेंटेन रहेगा जब आप एसआईपी रेगुलरली करोगे। तो जहां तक कि पॉसिबल हो हमेशा पॉज ऑप्शन के लिए जाओ, ना कि स्टॉप के लिए। ओके, जस्ट अ मोमेंट। There are questions I can see. As I said, I'll answer them in the last. And there was another shade to it कि जैसे अक्षता ने पूछा क्या मैं इसको ब्रेक या फिर विड्रॉ कर सकती हूँ? Yes, Akshata. If you continue with your SIP, contributing certain amount every month, if you are accumulated 5 lakhs, then and if you need a 1 lakh rupee or odd amount, तो आप उसमें से निकाल भी सकते हो, आप अपनी SIP को कंटिन्यू रख भी सकते हो। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एसआईपी स्टॉप की और अपने अमाउंट निकाली नहीं, आपको एसआईपी भरने के लिए दिक्कत थी पर पैसों की जरूरत नहीं थी, तो आपने उसे कंटिन्यू किया, तो वो मार्केट के साथ हमेशा ग्रो होते रहता है, इसको हमेशा याद रखिए। अक्षता, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तिला
Should I ask? Yes, Akshata. Okay. Sorry. So, how do you select a scheme for SIP? This was a slide for pause. Yeah. So, Akshata, good question. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं. They say, sorry. So, when we select a scheme for you, एक छोटा सा फर्क है. जब आप सिलेक्ट करते हो स्कीम्स या फिर आप अपने मोबाइल पे किसी ऐप को डाउनलोड करके स्कीम्स लेते हो ना, तो आप सर्च करते हो गूगल पर. वो सर्च वाला ऑप्शन आपको क्या देगा? लास्ट 1 ईयर में किसी ने क्या अच्छा परफॉर्म किया, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट. बट व्हेन वी सिलेक्ट अ फंड फॉर यू, वी डोंट जस्ट सर्च, वी डू सम रिसर्च, जिसमें हम फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस चेक करते हैं. फंड मैनेजर की, हर एक फंड मैनेजर की अलग अलग स्ट्रेटेजी है. कोई टॉप टू बॉटम जाएगा, कोई बॉटम अप जाएगा. एथिक्स वो एमसी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर किसी एक एमसी ऐसी है जिसका स्मॉल कैप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वी नो द एथिक्स दे आर समवेयर. वो नाम तो एक देकर रखा है, स्क्रिप्ट्स अलग लेकर रखे हैं. सो ये सब हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. हर एक स्कीम का पास परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड चेक करते हैं. पास परफॉर्मेंस में और एक कंसेप्ट होता है रोलिंग रिटर्न्स. किसी भी रैंडम पीरियड को हम सिलेक्ट करते हैं और उसमें क्या परफॉर्म किया है पर्टिकुलर फंड ने, वो चेक करने की कोशिश करते हैं. शार्प रेशियो एक पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया, पर वैसे बहुत सारे रेशियोज है. इंफॉर्मेशन रेशियो, कितना अल्फा कितना बीटा जनरेट हुआ. सो कहने का मतलब ये है कि हम चार्जेस नहीं लेते ये सब करने के लिए, बट यस, यू कैन गेट एक्सपर्ट्स एडवाइस, बिकॉज हमारे पास टीम है. हम लोग में से 3-4 जन हफ्ते में कुछ आवर्स इसके लिए डेडिकेटेड रखते हैं और R&D करते हैं, और आपके लिए अच्छे से अच्छी स्कीम सिलेक्ट करके लाने की कोशिश करते हैं. Yes, Akshita. What is the right amount to investing in SIP? आई थिंक दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर. एक लड़की आई थी, शी सेड मुझे 1,000 की एसआईपी करनी है एंड हर सैलरी वाज 1 लाख प्लस. तो आई डोंट वांट टू जज, बट हम हमेशा चेक करते हैं कि आपका इनकमिंग कितना है और आपका आउटगोइंग कितना है. एक शीट में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, जिसे हम कैश सरप्लस शीट कहते हैं. मंथली ट्रैकर शीट है, जो आप हमारे स्टाफ से, मुझसे, सर से बात करके ये शीट हमारे साथ सॉल्व कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे. अगर आप ये एक्टिविटी हमारे साथ डेडिकेटेडली करते हो, इससे फायदा ये होगा कि इनकमिंग कितना है मंथली और आउटगोइंग कितना है, वो रफली आपको समझ आएगा. इसमें 1-2 हजार आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, 5,000 भी आगे पीछे हो सकते हैं, दैट्स ओके, बट एक एवरेज अमाउंट आपको समझ में आएगी. ये अगर शीट आप हमारे साथ फिलअप करते हो, तो हम एक अमाउंट आपको बता सकते हैं कि कितने अमाउंट की एसआईपी आपके लिए राइट होगी. अगर आपको ये जरूरी जानना है, जरूरी लगता है, तो प्लीज इसके लिए हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे. आप किसी को भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और टीम विल बी वेरी हैप्पी टू sit with you and solve this sheet with you. So this sheet can help. अच्छा, मैं मोटा मोटी एक रूल बता देती हूँ. आपके पास जितना पैसा आता है, उसमें से आप एक्सपेंसेस को हटा करके जो अमाउंट आ रही है, उसकी एटलीस्ट मीन 50% दैट यू शुड स्टार्ट विथ. एक बार आपको कंफर्ट लेवल आई, तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो. दिस इज ऑल आई कैन से अबाउट द अमाउंट ऑफ मंथली एसआईपी. एक और एक कंसेप्ट है, व्हेन वी talk about SIP, we always connect your SIP to a goal. तो वो गोल के हिसाब से भी हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कितने अमाउंट की SIP आपको करनी चाहिए. ठीक है अक्षता, पुढे जाऊया. Yes. My next question is, will you always offer equity as an asset class for my SIP? Good question. Akshita, when we talk about SIP, we always talk about equity more. Akshita, mute kar, sorry. We always talk about equity more because the longer the horizon is, हमें आगे जाके
टेबल भी ऐड किया है. द लॉन्गर द होराइजन इज, द मोर द रिटर्न्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. कंपाउंडिंग इफेक्ट उसका बहुत अच्छा होगा. पर जैसा आपका क्वेश्चन था कि हमेशा आप हमें इक्विटी दोगे, तो नहीं. मैं कंसेप्ट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए. आज आज या कल में वीकेंड है, आप बैठकर अपने फैमिली के कितनी अमाउंट प्रीमियम में पे करते हो. प्रीमियम टुवर्ड्स प्रीमियम वो जाती है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, क्रिटिकल इलनेस, वो सबकी ईयरली प्रीमियम की टोटल कीजिए, उसको 12 से डिवाइड कीजिए और वो अमाउंट हमारे साथ शेयर कीजिए. What we can do is give you an ideal fund which will not be an equity. Pay attention, it will not be an equity, it will be purely debt. एक कैटेगरी होती है जिसमें हम आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो पैसा हम आपका प्रीमियम जो भी ड्यू है उसके पहले आपको निकाल के दे सकते हैं, ताकि एक ही महीने में 60,000 भरना डिफिकल्ट जाता है, पर एक महीने में आप 5,000 भर सकते हो हर एक महीना. सो इससे क्या होता है, आपका मंथली प्रेशर प्रीमियम्स या ईएमआई भरने का थोड़ा रिड्यूस हो जाता है. ईएमआई का तो हम कर नहीं सकते, पर प्रीमियम के लिए जरूर कर सकते हैं. तो अक्षता, एज यू सेड, माय आंसर इज नो. इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल लाइक पेइंग अ प्रीमियम of any insurance policy, then I will give you a debt fund or I'll give anyone a debt fund. अगर कोई मेरे पास या हमारे पास आता है आपके मिड टर्म गोल्स को लेकर, जैसे कि 3 से 5 साल में है, anything below 3 years we treat, anything below 2 years we treat as a short term goals. अगर मिड टर्म गोल्स जैसे 3 years कि 3 साल में मुझे ये चीजें करनी है और उसके लिए मैं एसआईपी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो जाएगा हाइब्रिड फंड में. और जब कोई आता है हमारे पास लॉन्गर टर्म के लिए एसआईपी करने के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट, सी आर रिटायरमेंट आज अनदर 50-20 ईयर्स, मे बी कोई आता है कि बेबी मेरा बस कुछ महीने का है और मुझे वो 18 साल का होगा तब एजुकेशन फंड चाहिए, या फिर वो 25 का होगा तब मैरिज के लिए फंड चाहिए. ये सब बहुत लॉन्गर टर्म्स के गोल्स है. अगर कोई उसके लिए हमारे पास आता है, then purely equity is the option that we suggest. So असेट क्लास सिलेक्ट करना, स्कीम सिलेक्ट करना, जस्ट रैंडमली मत करना. उसके पीछे कुछ मकसद होना जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, आपको कहाँ तक पहुंचना है, ये हमेशा याद रखो, ध्यान में रखो. वी हैव अ सिस्टम इन आवर ऑफिस wherein we sit with you and create a goal for you. सो वो करके लो अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि यू कैन वंस यू लॉग इन टू योर ऐप यू कैन एक्चुअली व्यू ऑन द स्क्रीन, फोन स्क्रीन, कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये डेफिसिट है और मैं वहाँ पे कैसे पहुँच सकती हूँ. वुड लाइक टू हेल्प यू इन दैट. अक्षता, प्लीज नेक्स्ट. I have a I'm question, little bit Aishwarya. of भावना, आई sorry. एम सॉरी, मैं लास्ट में लूँ क्वेश्चंस इफ यू डोंट माइंड. Okay. मैं जरूर आपका क्वेश्चन आंसर करूंगी, बस ये प्रेजेंटेशन खत्म होने दो. लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, नथिंग मोर, एंड विल डिस्कस डेफिनेटली. मुझे बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी दिख रहे हैं. आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. यस अक्षता. Yes. What if I do not know the how much is the right amount for my goal? I'm little bit of confused. करेक्ट अक्षता, दिस हैपेंस विद एवरीवन, नॉट ओनली यू, कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए. शायद मेरे लिए 1 करोड़ बहुत ज्यादा है और शायद मुझे 5 करोड़ की जरूरत है. यू वुड नेवर नो. सो एक ये गोल बेस्ड सोल्यूशन ट्रैकर है हम लोग ने डिजाइन किया है, जिसमें हम आपके सब डिटेल्स लेते हैं आपके साथ बैठकर. ये शीट देखकर डरिए मत, ये बहुत सिंपल शीट है. ये एक्टिविटी आप हमारे साथ प्लीज कीजिए. कैश सरप्लस ट्रैकर के लिए 10 मिनट लगेंगे. इसके लिए भी आपके साथ बैठ के हमें सॉल्व करने के लिए 10 मिनट से कम ही लगेंगे, जिसमें हम एक गोल के लिए, प्लीज कीप दिस इन माइंड, फॉर ईच लाइफ गोल ऑफ योर्स देयर इज गोइंग टू बी अ वन ट्रैकर. आपके रिटायरमेंट के लिए हम अलग शीट भर के गोल को मैप करेंगे. चाइल्ड एजुकेशन के लिए अलग, चाइल्ड मैरिज अलग, आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं घर लेना है, लोन रीपेमेंट, अर्ली रीपेमेंट, ये सभी चीजें बहुत अच्छे से ट्रैक करके एक्चुअल अमाउंट पे हम ये शीट के साथ आ सकते हैं. सो
दिस इज द शीट विच कैन हेल्प यू. जैसे अक्षता ने बोला, मुझे कंफ्यूजन है, मैं कितने के अमाउंट की SIP करूँ, मैं कहाँ पहुंचूंगी, मुझे क्या मिलेगा, मेरे रिटायरमेंट के लिए क्या कॉर्पस है, सब चीजें आई थिंक ये ट्रैकर्स सॉल्व करने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी. अक्षता, देर इज वन मोर शीट आई वुड लाइक टू शो यू हियर इज, आपने ऑफिस में देखी होगी, वी डू दिस एक्सरसाइज विद ऑल आवर क्लाइंट्स हु आर यंग, जिनके साथ हमें एक्टिविटी करते हैं. रिटायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि हर एक के लिए रिटायरमेंट का कॉर्पस या रिटायरमेंट की अमाउंट जो चाहिए वो अलग है. एक दिन मैं सेशन करूंगी, पर अगर आपको लगता है कि आपको जानना है और हमारे साथ बैठना है, प्लीज डू कॉल अस, वी आर रेडी टू हेल्प यू. ये शीट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो. वी विल टेल यू वेर यू वांट टू रीच, where you have already reached, what is the deficit and how to help you in reaching there. ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है, हम आगे बढ़ते हैं. Akshata, since you are young and we have all many young people joining in for today's session, I would like to show one slide which is of compounding. See, there is a difference between simple interest and compounding interest. ये आज के टॉपिक की बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, जिसमें हम एक एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे. 10,000 की SIP किसी की चालू है, यहाँ पे दिख रही है, या एक्चुअल डेटा लिया है, कैलकुलेटर्स यूज किए गए हैं, ना कि रैंडम फिगर्स हैं. 7 years किसी ने 10,000 की SIP 7 साल तक की 12% का रिटर्न कंसिडर किया है. सेकेंड बंदे ने 10,000 की SIP 10 साल की मैंने 14% कंसिडर किया है, क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा था. थर्ड पर्सन ने 10,000 की SIP 15 साल की, तो हम लोग ने यहाँ पे 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कंसिडर किया ऑन एन एवरेज. व्हेन आई से परसेंटेज ऑफ रिटर्न, इट इज, प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट इज ऑन एन एवरेज. Third row states what is the amount that person is paying, and the last row explains us the corpus which can be accumulated. पहले केस में 8 लाख के 12 हो रहे, दूसरे केस में क्योंकि टेन्योर ज्यादा था 12 के मोर देन डबल 24-25 हो रहे. थर्ड केस में कंपाउंडिंग का बेनिफिट इतना बढ़ जाता है क्योंकि उसने सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा दिए. ये एक्चुअली 15% हम लोग ने ऑन एन एवरेज पकड़ा है. अगर हमारे जैसे टीम किसी एडवाइजर के साथ आप काम कर रहे हो और उसको हर 6 महीने में एक बार रिव्यू करके ले रहे हो, तो हम इतना जरूर मेंटेन कर सकते हैं, टाइमली बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग करके, इनफैक्ट इससे आगे भी बढ़ सकते हैं. सो 18 की वैल्यू यहाँ पे 62 दिख रही है. So you can see the difference in the amount paid and the amount accumulated, wealth accumulated. So this is the power of compounding. आप मुझसे सुनने की जगह मेरे पापा से सुनते तो वो एक्साइटेड होके सबको बताते 8th wonder of the world. Please take the benefit of it. Please remain invested and please create a wealth, not only for yourself, for your retirement and even for your next generation. Akshata, आय थिंक आपण तुझे सगळे क्वेश्चन्स आन्सर केलेत. काही इम्पॉर्टंट राहिलं असेल तर सांग. काही होतं येस, तर मला अजून एक मोस्ट इम्पॉर्टंट चालेल, क्वेश्चन विचार आहे. विचार ना, सो विचार मला ना. जर एक सर्टन अमाऊंट विड्रॉ करायची आहे, माझ्या फॅमिलीमध्ये कोणाला जर नीड असेल, इफ माझ्या भावाला जर एक कोर्स करायचा झाला, सो मला एक सर्टन अमाऊंट जर विड्रॉ करायची झाली तर ती मी करू शकते का? म्हणजे असंच मधून, म्हणजे आलं लक्षात. जसं मी मगाशी म्हटलं, यू आर कंटिन्यूइंग विथ वन अमाउंट ऑफ SIP एव्हरी मंथ. रिझल्ट काय होतो? यू हॅव अक्युमुलेटेड वेल्थ, त्याला मी कॉर्पस म्हणतो. त्याच्यातनं तू पार्शियल और कम्प्लिटली विड्रॉ करू शकतेस. सी, वी डोंट रेकमेंड अनलेस इट्स अ जेन्युइन रिझन. इनफॅक्ट तुलाच माहिती आहे, आपल्या टीमकडे एक शीट आहे विच एव्हरीबडी has to fill up when you are withdrawing a money, because you may forget why you started with this SIP, but we cannot afford to forget your purpose of doing the SIP. So of course, if the purpose is right, it's your money. Yes, you're free to withdraw it. थोडेसे काही त्याच्यात क्लॉज असतात, सॉरी टू इंटरप्ट, थोडेसे क्लॉज असतात. जसं 1 वर्षाच्या आत इक्विटीतली अमाऊंट काढली तर 1% एक्झिट लोड लागतो आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन लागतो. But always remember, since we are talking about capital gains, don't worry about capital gains. Capital gains will come into the picture only and only when you have accumulated greater number of profits.
सो प्रॉफिट जितना मिल रहा है उसके हिसाब से सबसे लेस टैक्स इसी में है शायद। Akshata, I hope I've answered all your questions. अच्छा, No, I sorry. have one big I have a lot of question. It's questions. common question. तो मला तो तुला आता विचारायचंच आहे. सो Yes. मला एक असा सगळ्याच म्हणजे इन्व्हेस्टर्सला हा प्रश्न पडतो की SIP ही सेफ आहे का, सेफ इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन आहे का, आणि Very good. मग ह्याच्यामध्ये पेशन्स का इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे मी तर इम्पेशंट आहे. सो वाय पेशन्स इज इम्पॉर्टंट आफ्टर इन्व्हेस्टिंग इन SIP. मी तुला एक सांगते. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल SIP हा खूप सेफ ऑप्शन आहे टू इन्व्हेस्ट. I'll give you the reason also, because when you have a lump sum amount, big chunk of money you are investing today totally into equity, there are chances that your amount, that NAV will get locked at certain point. We avoid that. That can be taken care in some other session. But when you're opting for SIP, आपकी SIP सोचिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल चलते रहती है. एक सर्टन अमाउंट पे फिक्स्ड, एक सर्टन डेट पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होगी. मार्केट इज गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली थ्रू आउट दिस टेन्योर ऑन ऑल दोज डेट्स. कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी स्टैग्नेंट होगा, बुलिश होगा, बेरिश होगा. सो इस सब का एक रुपी एवरेजिंग कॉस्ट करके कंसेप्ट है. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्गर ड्यूरेशन में वेल्थ क्रिएशन टारगेट करना है, सो आई वुड से लमसम के साथ साथ SIP बहुत सेफ है और बहुत हेल्प करेगी आगे जाकर. द ओनली की इज अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो शुरू में ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया, मार्केट आपने आज शुरू की, कुछ वॉर की न्यूज आई, मार्केट कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए नीचे जाता है, तो यस आई विल नॉट से नो, मैं झूठे प्रोमिसेस नहीं दूंगी. SIP के निगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं, पर जैसे मैंने बताया लॉजिक को समझो. SIP की रिटर्न्स निगेटिव मतलब NAV नीचे जा रही है, यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं. यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो कुछ साल के बाद हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए ज्यादा हेल्प होगी. कहने का मतलब ये है, इफ यू हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन माइंड एंड इफ यू कीप पेशेंस. सी अक्षता, एज यू सेड आई एम इम्पेशेंट, मुझे वो डर लगता है, फिर मुझे वो रोज देखनी है. अगर आपने मार्केट को अलग से ट्रीट किया, आपकी भावनाओं को अलग रखा, तो आप बहुत अच्छा एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो. व्हेन यू मिक्स दीज टू थिंग्स, मार्केट एंड इमोशंस, एक ट्रेजेडी हो सकती है. सो इन दोनों चीजों को अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं CFP हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ. मैं CFP हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट हूँ. वो साइकोलॉजी मुझे ज़्यादा समझनी पड़ती है, मेरे पापा ने मुझे ये सब सिखाया है, मेरी टीम भी वो फॉलो करती है. आई एम हैप्पी यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टीम एंड I hope looking forward to start with your SIP soon, Akshata. Yes. So झाले तुझे प्रश्न, आपण बाकीच्यांचे Yes. बघूया. Thank you. Yes, Thank you for thank you, ma'am. participating in today's session, Akshata. Thank you. Yes, Yes, Bhavna this is it. and Adam. Yeah, sorry, you were saying something? Yes, I wanted to thank you. नको जरा थांब. Pleasure. अरे, Yeah. बाबांना पण म्यूट करायला सांग. Sorry. Yes. Let's take the questions. Bhavna, I'm sorry I stopped you at that time. Please ask your questions now. We are done with the presentation. Hi, Ash. So my question is, the returns that you have shown, first of all, thank you so much for such an interesting and, informative session. The returns that Pleasure. you showed just now, as in Yeah. you were changing the term, from 7 years to 10 years to 15 years. Yes. But I also observed Yes. the rate of return also changing. So why is that so? So I have two questions here. First, why the rate of return was changing so Correct. drastically, like 15%? So is there a rationale behind it? Like, is it sure that 15%? And secondly, the amount that we will be getting if we adjust according to the taxation, will it be more as compared to the traditional methods that we follow for investing? Good questions. I appreciate. Bhavna, your first question was हम लोग ने rate of return change क्यों किया? ड्यूरेशन जितना बढ़ता है,
जितने टाइम आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हो, आप रिस्क को कम करते हो और रिटर्न्स ज्यादा मिलने की अपेक्षा बढ़ती है या फिर चांसेस बढ़ते हैं। जितने ज्यादा पीरियड आप अपने एसआईपी को देते हो, आपकी एसआईपी या फिर आपका कॉर्पस मार्केट से रिएक्ट करना बंद नहीं करता, बहुत कम करता है। इनिशियली जैसे मैंने 7 इयर्स के लिए जो रिटर्न्स लिए थे वो सिर्फ 12% थे, क्योंकि पीरियड कंपैरेटिवली कम था। जो जैसे पीरियड बढ़ते गया मैंने उसको 14 किया। मैंने ड्रास्टिकली चेंज नहीं किया है, मैंने 12 का 14 किया क्योंकि 3 साल बढ़ गए थे, और 10 के 15 हो गए तो मैंने 1 ही टक्का बढ़ाया। कहने का मतलब ये बना कि जो भी फंड्स हम दे रहे हैं, जो आपकी एसआईपी हमारे पास चालू है, वी विल कनेक्ट सेपरेटली फॉर दैट। अगर आप उसके रिटर्न्स देखोगे तो क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा था, मैंने 15 से ज्यादा वाले स्कीम्स आपके लिए सिलेक्ट किए थे, वो पर्पज अलग था। पर हम दिखाते समय 12, 14 या 15 दिखाते। आपका सेकंड क्वेश्चन था ये एश्योर्ड है? नहीं, ये एवरेज है। जब मैं 15 या 12 या 14 बोल रही हूँ, इसका मतलब है कभी कभी -2, -1, 2 भी गया है, कभी कभी 32, 28, 18, 19 भी गया है। एवरेज ये हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी टीम एवरी 6 मंथली आपको मिल रही है, आपके फैमिली बैकग्राउंड को जानने की, आपके फैमिली में जो चेंजेस हो रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट के सिनारियोस को स्टडी कर रहे हैं, और अगर ये एक्टिविटी हम 15 साल तक एक साथ करेंगे तो इतने रिटर्न्स पापा ने अब तक का रिकॉर्ड है लाके दिया है, और फ्यूचर में हमारी कोशिश रहेगी। यस, अगर कुछ मार्केट में अप डाउन होता है तो लिमिटेड पीरियड के लिए इसमें चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं, और वो हम लोग डिसएग्री नहीं करते। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि टैक्स इफेक्टिव। मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगी। टैक्स ट्रेडिशनल, आपने एक वर्ड यूज किया था, ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड में भी विल कंपेयर। एक दो पॉइंट्स में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। अगर मैं एक बात को अग्री करती हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादा होता है, पर वो तभी आपको भरना पड़ेगा अगर आपने बहुत ही कम पीरियड में बहुत ज्यादा रिटर्न्स ऑलरेडी आप ले चुके हो। तो कहीं ना कहीं आपने 4-5 लाख का प्रॉफिट उठाया है, तभी आप 30,000 भर रहे हो, एक रफली फिगर बोल रहे हो। तो लोग डरते कि मैं 30,000 कैसे टैक्स भरूं, पर वो ये नहीं देखते कि मैंने 4 लाख का प्रॉफिट विद इन अ ईयर गैदर किया है। सो कहने का मतलब ये है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत ज्यादा होगा तो उसको बुक करने के चक्कर में मत पड़ो। अगर वो बहुत ज्यादा है तो इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ टैक्स भर के सिक्योर कर लो। इट डिपेंड्स केस टू केस। जरा हिला माझं सेशन चालू आहे, सॉरी। सो that was one point. Second point, if we compare traditional avenues and mutual fund, यहाँ पे भावना TDS नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी टैक्स भरते नहीं हो तब तक जब तक आप उसमें से पैसा नहीं निकालते हो, या फिर तब तक जब तक आप उसको टच नहीं करते। तो yes, there is a long term capital gain involved, but we can manage that. हम उसे हमेशा लोगों को बोलते हैं हमें फेब्रुआरी मंथ में मिलने आओ, और फेब्रुआरी और मार्च में हमेशा प्लानिंग करते हैं कि हम टैक्स बिल्कुल भी हम वो उससे भाग नहीं सकते, पर उसको पे करने के बावजूद आपको बहुत मिल रहा है। अभी देखो यहाँ पे 15 साल में आपको अगर 18 का 62 मिल रहा है, अगर 2-3 लाख टैक्स में चले भी जाते हैं तो भी इतना आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट कहाँ मिलेगा। और अगर आपको इतना बढ़ के मिल रहा है तो हम तो बोलते हैं कि प्लीज टैक्स भरो। और जो भी हम वी हैव कंपेयर्ड ऑल द एवेन्यूज, मेड बी एफडी, मेड बी पोस्ट, दिस इज द वन एवेन्यू वेरिन यू कैन बीट इन्फ्लेशन। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6-7 तक का हमें कहीं मिलता है तो उसके ऊपर टीडीएस जाके वो और कम होता है, और इन्फ्लेशन भी वही रेट पे चल रहा है, तो आपको मिला क्या? जो भी 6-7% से ऊपर मिलेगा वो क्रीम है, वो बीटा है, वो आपकी एक्चुअल कमाई है, वो IRR है जो आप अर्न कर रहे हो। यस, आई अग्री देयर विल बी टैक्स, बट आई अश्योर यू दैट रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर लॉन्ग टर्म हो तो टैक्स भरने के बाद भी आप खुश होगे, या फिर जहां Thank तक you. की हो
एक और लास्ट पॉइंट भावना, अगर आपके रिटायरमेंट पास में आता है तो लास्ट के 3-4 साल हम आपके पोर्टफोलियो में ऐसे चेंजेस करेंगे ताकि आप एक ही साल में बहुत सारा टैक्स भी ना भरे, हम उसको ब्रेक करके आपको बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। आई होप आई एक और आंसर्ड। क्वेश्चन, थैंक यू। यस, एक और या क्वेश्चन, हम जो मंथली अमाउंट रखा है, हमने 7 साल के लिए भी हमने 10,000 ही रखा है और 15 साल के लिए भी हमने 10,000 ही रखा है, जबकि इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा, तो 15 साल बाद 10,000 की तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो उसके बावजूद इतने करेक्ट, अच्छे रिटर्न्स कैसे, मतलब 62 कैसे, मतलब यूं बहुत अच्छा ओनली क्वेश्चन है। 10,000 तो कुछ हाँ नहीं रहेगा। भावना, वेरी गुड क्वेश्चन। पहला पॉइंट, हम लोग ने यहाँ पे 10,000 क्यों रखा, ताकि आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने के लिए इजी जाए। अगर मैंने अमाउंट भी बढ़ाती तो नीचे 62 की जगह वो 1 करोड़ बन जाता, तो आप बोलते कि आपने तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाई है इसलिए वो बढ़ा है। इससे ये मुझे आपको दिखाना था, अमाउंट सेम रखने के बावजूद पीरियड बढ़ने की वजह से अमाउंट बढ़ रही है। हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे अलग था, आपका पॉइंट वैलिड है। और नेक्स्ट वीकेंड यही सेशन में लेने वाली हूँ कि सेम अमाउंट की एसआईपी जिंदगी भर प्लीज मत करो, क्योंकि आपका प्रमोशन हो रहा है। आपकी इन्फ्लेशन की वजह से अमाउंट 62 लाख जो अभी दिख रही है ना, भावना पुन्हा इज वेरी राइट, 15 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होने वाली है ड्यू टू इन्फ्लेशन। पुन्हा सो हम कोशिश, बाबा एकच मिनिट द्या. कुणालचा प्रश्न आहे, जरा तो अटेंड कर. कुणालचा प्रश्न आहे बघ. बाबा बघते, लेट मी कम्प्लीट दिस, आय डेफिनेटली आन्सर कुणाल क्वेश्चन. सॉरी, मी करते. मला फक्त एक लाईन सांगायची इकडे. काय सांगत होते. कहने का मतलब ये था कि कॉर्पस इंक्रीज होता है, बट अगर आपने इसमें टॉपअप किया होता 1000 का भी, तो ये 2 करोड़ भी क्रॉस कर जाता. माय नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन दॅट. भावना वॉज व्हेरी राईट, थँक्यू. मला ॲटलीस्ट पुढच्या सेशनचा टॉपिक सांगता आला. टॉपअप SIP इज गोइंग टू बी माय टॉपिक द नेक्स्ट वीकेंड. सॉरी बाबा, तुम्ही काय सांगत होता. कुणालचा क्वेश्चन आहे. येस कुणाल, यू आर ऑनलाईन, यू वॉन्ट टू आस्क मी. Kunal, if MF is not performing, then what plan of action? Very good question, Kunal. One thing, if it is not performing due to some market conditions, then आप सिर पटको. हमें अगर उस पर विश्वास है, हम नहीं चेंज करेंगे उसको. बार बार चेंज करने से टैक्सेशन लगता है, आपका पोर्टफोलियो अल्टर होता है, तो ये काम हम नहीं करेंगे. पर अगर हमें लगता है कि वो फंड मैनेजर में गड़बड़ है, उनके एथिक्स में गड़बड़ है, उन्होंने कुछ रेशियोज प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लेकर रखे जो हमें पसंद नहीं है एथिकली, तो हम बिल्कुल उसे चेंज करते हैं और उसका कॉर्पस भी स्विच होता है और SIP स्टॉप होती है और दूसरे में स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. आणि तुम्ही सगळेच जण क्रिकेट मॅच चालू असताना बघता की म्युच्युअल फंड सही आहे, म्युच्युअल फंड सही आहे, आपण सुरुवात करतो. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, म्युच्युअल फंड सही है, लेकिन ऍडवायझर की जरूरत है. आता जे कुणालने प्रश्न विचारला तो ऍडवायझर साठीच आहे, आणि आम्ही ऍडवायझर असल्यामुळे वी विल टेक द डिसिजन आफ्टर एव्हरी 6 months बाय लुकिंग इन टू द युअर पोर्टफोलियो. थँक्यू. एक येस बाबा, थँक्यू. एक कहावत आहे की बाय राईट सिट टाईट. सो घेतानाच की आम्ही अशा पद्धतीने घेऊ की सारखं सारखं चर्निंग करायची गरज नाही पडणार. बट येस, इफ द मार्केट सिनारिओ चेंजिंग अँड इफ युअर फॅमिली कॉन्फिगरेशन कुठल्याही ॲस्पेक्ट तुमच्या फॅमिलीत चेंज होतात, तर ऑफकोर्स आम्हाला ते बदलायला लागेल आणि ते आपण डिस्कस करून रिझॉल्व्ह करू शकतो. आपण पुढचा प्रश्न घेऊया. व्हॉट इम्पॅक्ट डू मेजर गव्हर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस सच एज टॅक्स रिफॉर्म्स, इंटरेस्ट रेट ॲडजस्टमेंट्स हॅव ऑन SIPs? भूषणजी, गव्हर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होतात. मध्ये ट्रम्पनी जे काही केलं, वॉर्स झाले, या प्रत्येक गोष्टीचा इम्पॅक्ट मी डिनाय नाही करणार, SIPवर होतो. पण माझा प्रश्न आहे, माझं उत्तर हे राहतं याच्यावरती, की तो जो इम्पॅक्ट होतो, तो थोड्या पिरियडसाठी राहतो आणि ते नंतर त्याला मार्केटनी नेहमी रिकव्हर केलंय. एका महिन्यात केलंय, कधी 7-8 महिने पण लागलेत. पण अजून एक गोष्ट ना, खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे, मला मिळाला तर मी शेअर करीन. एक खूप चांगलं ऑब्झर्वेशन एका इकॉनॉमिस्ट आहे, तो त्यांनी काढलं होतं. एक रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटमध्ये आहे तो माणूस. तो म्हणाला
की मार्केट अशा कुठल्याही जे ह्यांनी लिहिलंय ना, सरांनी खूप इंटरेस्टिंग पॉईंट्स लिहिलेत. मेजर गव्हर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, टॅक्स रिफॉर्म, इंटरेस्ट रेट अडजस्टमेंट, याला मार्केट पहिल्यांदा रिॲक्ट करतं. सेम गोष्ट परत झाली ना, की मार्केट थोडं कमी रिॲक्ट करतं किंवा नाही करत. पण मार्केट नवीन कुठली गोष्ट आली की परत रिॲक्ट करतं. सो मी जसं मगाशी म्हटलं, हे होणार आहे. आपल्याला पाहिजे तर त्याप्रमाणे चेंजेस आपण करू, पण घाबरायचं कारण नाहीये. ते परत रिकव्हर होतं. आपण अजून प्रश्न बघूया. हाऊ यू सिलेक्ट MF? व्हॉट स्ट्रॅटेजी आर यू अप्लाइंग? कुणाल, जसं मी म्हटलं की तुमची SIP ही तुमच्या एका गोलसाठी असली पाहिजे. अँड आय एम व्हेरी हॅपी टू से की कुणाल आणि मी लास्टच वीक भेटून आम्ही त्याचं गोल प्लॅनिंग वगैरे केलं. ही इज व्हेरी स्पेसिफिक. जसं आपण डिस्कस केलं तसं ते गोल कुठल्या पिरियडसाठी आहे, तो पिरियड आम्ही आधी लक्षात घेतो आणि मग स्कीम सिलेक्शन करतो बेस्ड ऑन दी असेट क्लास अँड होरायझन. डेट आहे, हायब्रिड का इक्विटी. सेकंड गोष्ट, इनफॅक्ट एक खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक कुणाल, एखाद्यासाठी आम्ही जेव्हा स्कीम सिलेक्ट करतो, फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, लोन चालू आहे का, डिपेंडंट किती आहेत, माणसाचा स्वभाव कसा आहे, मार्केट पडल्यावर ते कसे रिॲक्ट करतील, त्याच्यानंतर त्यांची पास्ट हिस्ट्री काय आहे, त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा आहे पास्ट इन्व्हेस्टमेंटचा, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून प्रत्येकासाठी सिलेक्ट केलेल्या स्कीम्स या वेगळ्या असतात. उद्या तू येशील 10,000ची SIP घेऊन आणि उद्या कुठेतरी सिनियर सिटीझन येईल 10,000च्या SIP साठी. त्या दोघांसाठी आम्ही कम्प्लिटली वेगळे फंड्स देऊ. किंवा उद्या तू तुझ्या फ्रेंडला 10,000च्या SIP साठी आणलंस तरी तुमच्या दोघांचेही फंड्स आम्ही नेहमी वेगळे घेऊ. माझे बाबा एक उदाहरण देतात. आपण जेव्हा वॉकला जातो तेव्हा शूजचा साईज हा वेगवेगळा असतो ना, तुझ्या आणि तुझ्या फ्रेंडचा. मग फ्रेंडच्या स्कीम्स तुला का? सो असंच येते की कुठे ना कुठेतरी आपण प्रत्येकासाठी कस्टमाइज खूप डीपमध्ये जातो. फॅमिली बॅकग्राऊंड समजून घेतो. म्हणजे खरं सांगू तर आम्ही त्या फॅमिलीसाठी एक फॅमिली फ्रेंड सारखे असतो. जितकं तुम्ही आमच्याशी ओपनली बोलाल, तितकं स्कीम सिलेक्शन खूप छान डिटेलमध्ये होऊ शकतं. आपण पुढे जाऊया. येस कुणाल, वेलकम. आपण पुढे जाऊया. इज अ ग्रोथ ऑप्शन बेटर? सुषमा मॅम, येस, ग्रोथ ऑप्शन हा बेटर आहे ओव्हर द ऑप्शन ऑफ IDCW विच इज डिव्हिडंड. याचं कारण हे आहे की आजकाल डिव्हिडंडमध्ये जर तुम्ही ऑप्ट केलं तर 10% कापून हातात मिळतात आणि तुम्ही ज्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येता त्या टॅक्स स्लॅब प्रमाणे तुम्हाला नंतर ते भरायला लागतात. सो ग्रोथ घ्या, ग्रोथ ऑप्शन घ्या आणि शेवटपर्यंत टॅक्स भरू नका आणि तुमचं वेल्थ क्रिएशन खूप चांगलं होईल. हाऊ इज SIP डिफरंट फ्रॉम लमसम इन्व्हेस्टमेंट? आय थिंक आय हॅव ऑलरेडी आन्सर्ड दॅट, भूषण सर. हो, बघते. व्हिडिओ वॉज नॉट ऑडिबल, सॉरी. मी नक्की तुमच्याबरोबर तो व्हिडिओ शेअर करीन. खूप छान आहे. ओके, आय थिंक खालचे प्लीज कन्फर्म इफ द ऑडिओ इज क्लिअर. ओके, खाली आहे. इफ पॉसिबल अँड इफ देर इज टाइम, आय हॅव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग STC आणि LTC. STCG आणि LTCG, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन. येस निलेशजी, मी सांगते. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन इक्विटी असेल तर आपण 1 वर्षाच्या आत कन्सिडर करतो, जो 20% आहे. आणि जर 1 वर्षाच्या वरती आहे तर तुम्हाला 1.25 लाखाचं बेनिफिट मिळतं. व्हॉटेवर प्रॉफिट यू आर अर्निंग, 1.225 lakhs will be deducted, will be waived off. For the rest of the profit, you will have to pay 12.5% as a LTCG. But again, तुमची टॅक्स स्लॅब, very short question on audio. Sure. Hello, Sorry. Aishwarya ma'am. Hello. Please, Nilesh ji, please Yeah, reach out. thanks for answering my earlier question. I wanted to ask you, I understand that as a thumb rule, whatever gains I make in mutual funds over a 1 year period are considered as short-term capital gains. I purposely cut down the C to save time, but yeah, whatever we get in 1 year is considered short-term, and whatever we gain after 1 year over a longer period of time is considered long-term. My question It is is, equity. whatever I earn in short term, is that considered as short term permanently, or if I do not withdraw it in that 1 year, it transfers to long term? That is, when I withdraw something, will there be a short term tax and a long term tax, or will there only be a long term tax? Did you get my आपने पैसा question? डाला आज, आपने 1 जी. साल के अंदर उसे स्विच या विड्रॉ किया, शॉर्ट टर्म में गया वो.
जी एक बार ट्रांजैक्शन हुआ, शॉर्ट टर्म में गया। नहीं, मेरा आपने- क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने लॉन्ग टर्म में सपोज मैंने 3 साल के बाद मैंने विड्रॉ किया, तो क्या उन लोग हिसाब रखते हैं कि मेरे पहले साल में नहीं कितना प्रॉफिट था उसके ऊपर नहीं 20%? ये मेरा क्वेश्चन था, नहीं मतलब एक नहीं। गुज्जू का क्वेश्चन आपने है लेकिन। 3, जी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे आपका या क्वेश्चन समझा गो है। अहेड। मैंने या एक लाइन बीच में बोली थी कि जब तक आप उसको टच नहीं करते हो आपको टैक्स नहीं भरना है। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने वो शॉर्ट टर्म का पैच या पीरियड क्रॉस किया, उसके बाद जी आपको जो भी टैक्स हुआ है वो लॉन्ग टर्म में गया। जैसे आप थैंक यू मैम, पूछ रहे हो वो शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी उसमें मैथमेटिक्स नहीं आता, अनलेस देयर क्लियर वाज मैम, अ ट्रांजैक्शन। या आई गॉट इट नाउ, थैंक यू मैम। वेलकम। येस आदिती, कुठे हा क्वेश्चन मला का नाही दिसत आहे? अच्छा, कॅन आय चेंज इट फ्रॉम डेट टू इक्विटी? येस, वी कॅन. If while starting with the investment, we might have done it in debt, but if your horizon and if your goal has changed, yes, we can change. देखो, ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है SIP, जिसमें आपको बहुत फ्रीडम है। आप असेट क्लास चेंज करो, यू कैन डू दैट। यू कैन चेंज द अमाउंट, यू कैन इन्वेस्ट एक्स्ट्रा, यू कैन विदड्रॉ। सो इतना फ्लेक्सिबल ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? Yes, you can change asset class. You can change the scheme. Welcome. If the senior citizen is investing, will the rate of return in SIP will be even more high? No. भावना, कॉर्पोरेट FD में ये कंसेप्ट है या फिर बैंक FD में ये कंसेप्ट है कि नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए रेट्स अलग अलग होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। म्यूचुअल फंड में देर इज नथिंग लाइक इट। Irrespective of your age, whatever investment is done in mutual fund, you will get same returns. And irrespective of your amount, आप भले 1 लाख करो या 1 करोड़ करो, ये बेनिफिट कहीं नहीं मिलता, आपको सेम IRR मिलेगा। एज मैटर नहीं करता, अमाउंट मैटर नहीं करती। एनीथिंग एल्स आई हैव मिस्ड? आप प्लीज बताइए मुझे, कोई भी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। आई एम डन विथ माय प्रेजेंटेशन एनीवेज। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। यस सर। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया SIP और लमसम के बारे में। जी, मेरा थैंक क्वेश्चन यू। लमसम से जुड़ा हुआ है कि अगर मैं आपको कहता हूं जी कि मुझे लमसम सपोज 1 लाख डालना है और जी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ज्यादा, मैं आपको अलाउ करता हूं, जो भी उसका जी परमिशन है मैं आपको देता हूं, तो क्या आप ये लमसम डायरेक्ट इक्विटी में डालोगे या हमेशा उसके डेप्थ में डाल के फिर सिस्टमेटिक STP करके हम इक्विटी में डालेंगे उसे? आप मतलब रिस्क लेने are there की, cases where depending on the client's need you put the entire amount directly in equity? यस आई आंसर। जैसे आपने बोला आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पर मुझे और एक इनपुट चाहिए आपसे। क्या आपका होराइजन ज्यादा है? क्या आप 5-10 साल के लिए उसे देखोगे नहीं बिल्कुल? तो मैं हाँ डायरेक्टली ले सकती हूँ। हाँ, अगर मैं आप आपसे बोलोगे कहूँ कि नहीं मैं मुझे आपसे कहूँ 1-2 कि साल, आप जो हाई वैल्यू फंड है, हाई रिटर्न्स देता है, उसमें आप डालिए और मेरा जो एक्सपोजर है 3 to 5 years है, 5 years पकड़िए। बिल्कुल डाल सकती हूँ लमसम, बट माय सजेशन वुड बी, अगर आपने STP की, आज हम लोग ने SIP की बात की, आपका क्वेश्चन STP से रिलेटेड है, कभी हम Yeah. STP का भी सेशन लेंगे, ये टॉपिक ही अलग है। पर अगर आपने लमसम दिया, मेरा या फिर मेरे पापा का सजेशन ऑलवेज ये होगा कि आप STP करो। अगर आप आते हैं, मैं इस पे नहीं या हम इस पे नहीं डिसाइड करते कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है या फिर होराइजन क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट क्या कर रहा है अभी। मार्केट अगर 72,000 पर है आज, 70,000 तक गिर के आया, दीजिए मुझे, मैं पूरा 1 लाख नहीं 10 लाख भी डाल सकती हूँ मार्केट में। अगर मार्केट आज 85,000 क्रॉस कर रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज आप धीरे धीरे डालिए, तो STP कीजिए, एवरेजिंग मिलेगा, आगे चलकर आपको बेहतर यूनिट्स मिलेंगे और रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए नीलेश जी, पॉइंट ये है कि आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, कोई यंग पर्सन आएगा उसके लिए मैं अलग से प्लान कर सकती हूँ। इसमें और एक पॉइंट है, आपका बैकअप कितना है हमारे पास। 50 लाख 1 करोड़ का है, ठीक है, बैकअप सिर्फ 1 ही लाख का है, तो शायद हमारी डिसीजन चेंज होगी। सो दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन वेयर आई नीड टू आइडेंटिफाई योर होल पोर्टफोलियो, योर
बिहेवियरल पैटर्न्स, योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, मार्केट क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा. बट आवर आंसर वुड बी गो फॉर एसटीपी. मायने ये रखता है कि कितने महीने में आपको इक्विटी में जाना है, 10 महीने, 12 महीने या 3-4 महीने, वो शायद मायने रखेगा. पर एसटीपी इज बेटर. Thank you, ma'am. I'm very much satisfied with your answer. I understand now. Thank you, ma'am. वेलकम, प्लेजर. Yes. ETF or mutual fund? Very good. ETF and mutual fund as it, Kiranji. Mutual fund has two options. Passive and active SWP. मयुरेश दादा, SWP कम्प्लिटली माझा एक वेगळा 1-1.5 तास बोलू शकते, एवढं मोठं सेशन होऊ शकतं. मी नक्की SWPचा वेगळं सेशन घेईन. मी आज थोडंसं 1 मिनिटात तुला नक्की गाईड करते. अच्छा, कमिंग बॅक टू ETF फॉर म्युच्युअल फंड. ETF म्युच्युअल फंडमध्येच एक ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह असे 2 प्रकार आहेत. सो किरण सर, जेव्हा आपण फंड मॅनेजर्स इन्व्हॉल्ड असतात, खूप फंड मॅनेजर्स आहेत, एक्सपेन्स रेशो पण आहे, मॅनेज केलेला फंड आहे, टीम आहे मोठी, देन इट्स ऍक्टिव्ह फंड. वेन इट मिरर्स इंडेक्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, जिथे पॅसिव्ह फंड असतो तो इंडेक्सला मिरर करतो, कमी एक्सपेन्स रेशो असतो, कमी कॉस्ट असते, पण बीटा नाही जनरेट होत. तुम्ही इंडेक्सला मिरर करता, दॅट इज इंडेक्स फंड किंवा ETF. कुठलं बेटर आहे? दोन्ही चांगले आहेत, दोन्ही घ्या. आपण नुसता भात नाही खाऊ शकत, आपल्याला वरण लागतं, त्याच्यावर थोडंसं लोणचंही लागतं. सो इट्स अ थाली. कम्प्लिटली तुम्हाला सगळ्या गोष्टींची कॉम्बिनेशनमध्ये गरज लागणार आहे कायम. सो तुमच्यासाठी ETF किती चांगलं, किती प्रमाणात घेतलं पाहिजे हे आपण ठरवूच. पण एक 10 to 15% प्रत्येकाने घ्यायला हरकत नाही. पॅसिव्ह फंड्स, एक्सपेन्स रेशो खूप कमी असतो, पण अल्फा जनरेट होत नाही. सांगायचा मुद्दा हा की प्रत्येकाचे आपले पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह पॉईंट्स आहेत, पण हे दोन्ही तुम्हाला वेल्थ क्रिएशनमध्ये हेल्प नक्की करणार आहेत. सो कॉम्बिनेशनमध्ये जा, तुम्हाला कितीची अमाऊंट करायची ते सांगा, आपण सगळ्याचं छान बास्केट बनवून तुम्हाला नक्की द्यायचा प्रयत्न करू. मयुरेश दादा, SWP, आपण SIP बघितलं, आता निलेशजींचा क्वेश्चन होता तेव्हा STP बघितलं. SWP तिसरा भाऊ आहे. SIP, STP, SWP. SWP मध्ये ना एक्झॅक्टली SIPच्या अपोजिट होतं. हा एक अतिशय मोठा, वेगळा आणि खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. सिस्टमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन, ठराविक अमाऊंट एव्हरी मंथ, फिक्स्ड अमाऊंट फिक्स्ड रेटला उलटं होतं. म्युच्युअल फंडमधून तुमच्या अकाउंटमध्ये क्रेडिट होतं. सो हे होत असताना पण मेन तुमचे प्रिन्सिपल ग्रो होते. आणि हे कुणासाठी आहे? देर आर 2 phases in our life. We are in the phase of accumulation. आपण नोकरी करतोय, रिटायरमेंटचं एज येईपर्यंत इट्स अॅक्युम्युलेशन फेज, वेअर इन वी अॅक्युम्युलेट अँड वी इन्व्हेस्ट सम अमाऊंट. SIP करायची असते तेव्हा. वेन वी रिटायर, वी गो इन टू दॅट SWP फेज. तेव्हा वी डोंट वॉन्ट टू accumulate, we want to distribute, we want to get money. So that is the distribution phase. Accumulation, distribution. Accumulation मध्ये SIP करा, कॉर्पस क्रिएट करा, तो क्रिएट झाल्यावरती रिटायर होताना त्यातनं इन्कम घ्या. SWP करा. दिस इज द कन्सेप्ट. सो SWP तुम्हाला इन्कम देईल. मी थोडक्यात समजावलंय दादा, मी परत वेगळं सेशन नक्की घेईन. वेलकम. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? 11:15 झालेत. मे बी आपल्याला स्टॉप करायला लागेल इकडे. मी एक इंटरेस्टिंग सांगते काहीतरी. तुमचा आपला सेशन झाला ना की आम्हाला कोणाला तरी रीच आउट करून SIP साठी तुम्ही काय फुल फॉर्म तुमचा क्रिएट करू शकता, आवडता किंवा इंटरेस्टिंग, लुक्रेटिव्ह, ते आम्हाला नक्की कळवा. एक एक्झाम्पल देते. सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनच्या ऐवजी मी म्हणू शकते सही इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन किंवा असं काहीतरी. सो थोडंसं क्रिएटिव्ह होईल. नक्की आम्हाला कळवा, आम्हाला आवडेल आणि मग ते आम्ही सर्क्युलेट पण करू. सो सगळ्यांना मी हेच सांगेन की तुमच्या जाता जाता एक महत्त्वाचा पॉईंट, तुमच्या वेल्थ क्रिएशनमध्ये SIP हे खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन असेल, कायम तुम्हाला हेल्प करेल. नक्की चालू ठेवा, भले छोट्या अमाऊंटची का असे ना, नक्की हे चालू करा. Aishwarya ma'am, पीस हॅज टू बी, पीस आणि पीस दोन्ही होऊ शकतं. व्हेरी गुड. Aishwarya ma'am, please allow me one last question, guaranteed last question from me. But I'm asking this because I'm very sure
I'm very sure that a lot of people, who think like me must be having this doubt in mind. Sure, I Nilesh. have Yeah. I have seen whatever I follow as a layman. I have seen that in the last 3 or 4 days there has been a quantum jump in the mutual fund value. So then the question is, see, I want to make it clear that I do not want the money now. I do not require it. But the question is कि मैं चूक तो नहीं जाता, ऐसा तो नहीं है कि जितना बड़ा है उतना कम से कम निकाल लूं कि ये बेनिफिट मुझे बाद में नहीं मिलेगा, तो मैं वैसा करूं, या जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ये मे बी 1 साल के बाद 2 साल के बाद आएगा और वो ग्रेटर परसेंटेज में आएगा. व्हाट शैल आई डू बिटवीन द टू? दैट इज विथड्रॉ इमीडिएटली एंड एंजॉय द बेनिफिट, और जरूरत नहीं है तो उसको बढ़ने दो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लूंगा बाद में जब भी होगा. तो विच ऑप्शन शुड आई गो फॉर? दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. Wonderful question. मी सांगतो, Baba, please. Be देखो the right जरूरत person. नहीं है, जरूरत नहीं तो आप वैसे ही पैसा रखो. 15 मार्च को हमारे पास बहुत इंक्वायरी आई थी, वो ट्रम्प कुछ बोलने वाले हैं, मार्केट का क्या होगा, मैं पैसा क्या निकाल के रखूं क्या. देखो तभी मार्केट जो था ना 15 मार्च को, वही मार्केट 15 अप्रैल को था, और अभी तो 15 जून के बाद में मार्केट और ही बढ़ रहा है. मतलब दिस हैपनिंग इज ओनली फॉर फ्यू डेज, फ्यू मंथ, नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड. हम लोगों ने 2005 देखा है, 8 देखा है, 14, 15 और कोरोना. वी आर इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 24 ईयर. तो जब तक आपका गोल सेट नहीं होता है या नजदीक नहीं आता है, तब तक आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचो ही मत. ओके. गोडबोले साहब, Yes. नमस्कार, and thank you very much for having personally taken on my question. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच. अपन एक बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया एक पॉइंट कि आपके गोल के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं. अगर आपका गोल पास में आ रहा है ना, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम. यू कैन सिक्योर अ पार्ट ऑफ इट, बट इफ देर इज अ टाइम यू कैन वेट. डिपेंड्स. राइट. Thank you, ma'am. वेलकम. आय थिंक कोणी कोणी लॉग आउट केलंय. आपण दर सेशनला एक फोटो काढतो. मी स्टॉप शेअरिंग करते. जमलं तर तुम्ही प्लीज व्हिडिओ ऑन करा. आपण एक खूप छान फोटो क्लिक करूया. असं आमच्याकडे आम्ही एक बॅक बनवतोय. सो सगळ्यांचा एक छान कोण काढेल फोटो? केवरी. सो येस, तुला आम्ही दिसतोय सगळे व्यवस्थित. थँक यू फॉर स्विचिंग ऑन युअर व्हिडिओज. झालं की सांग. We have few entries like saving is power. Wow. Kunal मस्त. Yes, my pleasure, Shlo. Sushma ma'am, thank you. Thank you for attending everyone. झालं केवरी? एकच मिनिट. लास्ट ती बऱ्याच वेगवेगळ्या स्लाइड्स वरती फोटो सगळे क्लिक करते. सो झालं. थँक्यू एव्हरीवन फॉर जॉईनिंग इन. आम्हाला नक्की तुमचा फीडबॅक कळवा. आम्हाला सजेस्ट करा आम्ही कुठले टॉपिक्स इन्क्लूड करू का, आणि असंच आपण दर शनिवारी भेटत राहू. थँक्यू. येस, थँक्यू संजयजी. ठीक आहे, मी मीटिंग एंड करते.